Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, we have completed the basics of computer and the first chapter here in your class 8 book. The first chapter here in your class 8 book is is basic of computer, money computer system. The very first chapter that we have to read is computer system. So see, after completing the first chapter, let us start doing this. Let us start doing computer system. So what are the topic? What are the different topic that we have to cover in this chapter? Now the various topic that we have to cover here is introduction to computer, benefit of using computer, characteristics of computer, maintaining the hardware, human wear and ergonomics. Okay, these all are the topics that we have to cover in in this chapter. Okay, now moving ahead. Chalo, let us start the chapter. So here computer system. Okay, now the first is introduction to computer. Introduction to computer. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. देखो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी हमने चीज़ें पढ़ी. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जब हम क्लास में रिवाइज कर रहे थे तो ये इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हमने कर रखा है. ठीक है. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट. So a computer is an electronic machine that works as per the instruction given by you. So very simple line, very simple definition that computer is what? It's an electronic machine and that works on the instruction given by us. माने जो भी instruction, whatsoever the instruction we used to give the computer, it works on that. ठीक है, it works on that, on whatever the instruction we are giving to the computer. Okay, okay. So अभी देखो, सपोज ये पेज है, आई हैव टू स्क्रॉल इट. तो आई when I am pushing the button, then only I am able to scroll the page down. Fine. So this is the meaning of the instructions given by you. This is the meaning of the instructions given by you. Now it can accept data, manipulate the data according to the specified rules, produce result and save storage the result for the future. What all are the tasks here that a computer do? First thing is that it accept the data. First of all, what it does, it accepts the data. ठीक है. Then I'm sorry. Then it manipulates the data. Then what it does, it manipulates the data according to the specified rules. Produce result. Third one is it produces the result also. Results भी ये produce करते हैं कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये, लेकिन ये सारे काम्स होते हैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में. एक सेकंड में कंप्यूटर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं. जैसे राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, मेरा ये जो कंप्यूटर है ये कितने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी बोल रही हूँ सबसे पहले वो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है. मैंने पीडीएफ ओपन किया, वो मैं जब उसके पेज को स्क्रॉल कर रही हूँ तो कंप्यूटर वो भी काम कर रहा है. और प्लस अगर सपोज मुझे यहाँ पे स्क्रिबल करना है, जब मैं यहाँ पे स्क्रिबल कर रही हूँ तो कंप्यूटर वो भी काम कर रहा है. ठीक है, यू गॉट इट. ओके, so computer what it does, it manipulates the data and after manipulating the data, um, first of all it accepts the data, then it manipulate the data according to specified rule, produce result, and then what it does, it used to produce the result produce करता है, सेव करता है डेटा फॉर द फ्यूचर यूज.
Now this series of input process output and storage is known as IPO. अब देखो IPO का डिस्कशन हमने पीपीटी में भी किया था. When we were reading that PPT, so there also I have explained you about the IPO. वहां पे भी मैंने आपको IPO के बारे में बताया था. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आउटपुट. अभी देखो IPO का समझने के लिए एक एग्जांपल जो हमने ले रखा था पिछले वीडियो में, वो ये था कि IPO इज व्हाट. सपोज करो you have to make a lassi. So when you will be putting the things into the jar like curd and the sugar and ice, when you will be doing that, so what you are doing that time, you are inputting it, है ना. आप उस जार में क्या कर रहे हो, चीजों को इनपुट कर रहे हो. देन व्हेन you are keep fitting it on the mixer grinder and then switching on the mixie और फिर वो चलती है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है प्रोसेस. वहां पे आपका डेटा क्या हो रहा है बेटा, प्रोसेस हो रहा है. डेटा क्या मतलब कर्ड प्रोसेस हो रहा है. एंड देन फाइनली जब आप उसको ग्लास में निकाल लेते हो तो वो क्या होता है, दैट इज योर आउटपुट. वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आउटपुट. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दिस सीरीज ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटी इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. ठीक है, IPO वी कॉल इट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की साइकिल इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल. फाइन. नाउ let us move toward the next point. Now the next point are the various terms जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरियस टर्म जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है ना. द वेरी फर्स्ट वन ऑफ देम इज डेटा. द वेरी फर्स्ट term here is data. So data is what, data is the collection of unorganized fact. Data is what, it's a collection of unorganized fact which can include words, number, images and sound. Which can include, क्या क्या include करता है, it can include the word, number, images and sound. तो unorganized है, मतलब कि अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं है. तो अनऑर्गेनाइज रॉ मटेरियल जो होते हैं, तो वी यूज टू कॉल देम डेटा. हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल देम डेटा. नाउ द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन. अगला टॉपिक जो है आपका वो है इंफॉर्मेशन. नाउ व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन, सो आई एम सॉरी. सो इंफॉर्मेशन में क्या है, what is there in information? Information refers to the data. Information refers to the data that is organized, meaningful and useful. Okay, information refers to the data that is organized, meaningful and useful. Information क्या होता है, डेटा जो कि कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीनिंगफुल होता है और यूजफुल होता है. डेटा को ही जब प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, डेटा ही आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम इंफॉर्मेशन. डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम इंफॉर्मेशन. ठीक है. Now the main job of a computer is to process data into information. The main job of a computer, what is the main job of a computer? Is to process data into information. Into the information. ठीक है. अब देखो डेटा को इंफॉर्मेशन बनाना ही कंप्यूटर का मेन जॉब है. ठीक है. Computer carries out processing using the instruction, which are the steps that tells the computer how to perform a particular task. It tells the computer how to perform a particular task. ठीक है. तो we are reading about here processing. Processing क्या? It is the main job of computer. It is the main job of computer. Why so? Because here computer is used to process data and information. Process data into information to be particular.
हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो अभी तक व्हाट वी हैव रेड सो फार, up to now we have seen the uses of computer, benefit of using computer, and then we have seen all these things like introduction to computer and है ना, these all things we have seen. Now what happened, अभी तक इतना देखा. Now the next thing that we have to see, moving ahead, the next is after the benefit of computer we have seen. Now next is characteristics of computer. Now the next point that we have to read is what? The next point that we have to read is characteristics of computer. मतलब क्या कि कंप्यूटर के characteristics क्या होते हैं? What are the characteristics of computer? कंप्यूटर के characteristics क्या होते हैं? तो अभी भाई characteristics of computer की बात करें. So let us read. So today's the computer are playing a major role in our everyday's life. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अभी हमारी रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है. कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. फाइन. देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बहुत सारे. वी आर हैविंग डिफरेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बेनिफिट कई सारे हैं. ठीक है. अभी here we are going to see few such benefits where we are going to see few such benefit of using the computer. ठीक है. कंप्यूटर को यूज करने के क्या बेनिफिट है, that we are going to see. Now class, the let us know why computer have become a necessities and in today's world. चलो let us find out that why computer has become what? Computer has become necessity in today's world. आज की दुनिया में कंप्यूटर कैसे एक नेसेसिटी बन गया है? तो पहली चीज जो आती है वो होती है स्पीड. द कंप्यूटर अलाउज यू टू परफॉर्म मेनी टास्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर व्हाट इट डज, इट अलाउज यू टू मेनी टास्क वेरी फास्ट. कई सारे काम को बहुत तेजी से करने में क्या होता है? कंप्यूटर हमारी मदद करते हैं. कई सारे काम होते हैं जो कि हम बहुत तेजी से करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से कई सारे काम जो होते हैं वी डू वेरी फास्ट. ठीक है. इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली टू. अब कंप्यूटर में एक पॉइंट और जो है वो ये है कि इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. कंप्यूटर क्या कर सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही जल्दी से क्या कर सकता है? हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे दे सकता है. फाइन. So the computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. Inside the system unit, operation occur through electric circuit. ठीक है. तो electric circuit, what happen कि like a electric circuit कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जितनी जो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट हैं उनमें जो काम होता है वो होता है, ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के. जिस तरह से सपोज अगर आपको फैन ऑन करना है तो हाउ इट विल वर्क. फैन ऑन करना है तो कैसे काम चलेगा? अब फैन ऑन करना है तो यू विल स्विच ऑन द फैन एंड देन सडनली इट विल स्टार्ट वर्किंग. सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंपोनेंट ऐसे ही काम करते हैं. When data, instruction and information flow along these circuits, they travel close to the speed of light. अब जब डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं इन सर्किट में तो व्हाट हैपन? दे ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये क्या करते हैं? इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. जैसे स्पीड ऑफ लाइट का कहने का मतलब क्या कि एट अ वेरी हाई स्पीड. एट अ वेरी हाई स्पीड दे वर्क एट अ very high speed. Now class, moving ahead, moving toward the next point. When data instruction, हाँ ठीक है. This allows billions of operation to be carried out in a single second. This allows what? This allows billions of operation. Billions. देखो बेटा 1, 2, 3 नहीं, but here they are talking in billions. और क्योंकि आपको इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट्स पता है, so you know very well
कि बिलियंस का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलियंस की मीनिंग क्या निकल के आ रही है। सो बिलियंस यू कैन एज्यूम द अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। दे ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, दे दिस allows operations to be carried out in a single second. For example, if you mail a letter to a friend by a postal service, अगर आप कोई लेटर अपने किसी फ्रेंड को थ्रू पोस्ट पे सेंड करते हो, ठीक है, अगर आप लेटर अपने किसी फ्रेंड को पोस्ट के थ्रू सेंड करते हो, सो ही और शी में रिसीव इट इन अ फ्यू डे, तो वो हो सकता है कि इन अ डे और टू वो उसे रिसीव करे। However, if you send an email, it will be received in a second or a minute. It will be received in a few second or a minute. कुछ ही सेकंड में वो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात हुई स्पीड की। Here we are talking about the speed of the computer. So we have found out that the speed of computer is very fast. कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, बिलियंस ऑफ डेटा कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक टाइम पे कंप्यूटर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, कंप्यूटर वर्क कर सकता है। यू गॉट इट। अच्छा, नाउ when data, instruction and information flow along this circuit, they travel close to the speed of light. और कंप्यूटर में जो काम होता है, कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट्स में जो काम होता है, वो काम होता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में कंप्यूटर में क्या होता है, काम होता है। मतलब आप खुद सोचो, जब हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, वेदर इट इज 2+2 और इट इज फाइंडिंग द स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कंप्यूटर उतना ही टाइम लेता है, मतलब बहुत जल्दी कंप्यूटर क्या करता है, रिप्लाई करता है। So that's why it is written here that computer would happen. It takes billions of computer take billions of computer can work at a billions of operation. बिलियंस ऑफ ऑपरेशन को कंप्यूटर क्या कर सकता है, कुछ ही इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंप्यूटर क्या करता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज वन सच थिंग। अच्छा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रीड इज द क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ी है कंप्यूटर के बारे में, वो क्या है, कंप्यूटर की क्वालिटी है। अब व्हाट अबाउट द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो देखो कंप्यूटर में क्या होता है, रिजल्ट दैट वी गेट इन अ कंप्यूटर इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। देखो ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया था कि सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, जहाँ पे हमने, आपको याद होगा हमने कानवा की हेल्प ली थी। सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, अगर आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो, यू आर मेकिंग द पोस्टर विद द हेल्प ऑफ योर मैनुअली, यू आर मेकिंग, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप कोई पोस्टर मैनुअली बना रहे हो, सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर मेकिंग एनी पोस्टर मैनुअली, so it will take your time also, और उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं आएगा, you won't get the क्वालिटी कंटेंट, उतना क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कितना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको तब मिल सकता है जब आप वही काम, वही डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से बनाओ। सो व्हाट इज रिटन हियर, that the computer enables you to create high quality document and drawing. Computer, what it helps you to, it helps you to create high quality document and drawing with just a few simple technique. What happen, with the help of few simple technique you can create document, ठीक है। simple technique से what happen, what you can do, you can create the document and are exactly suited to your present task. The computer enables you to create high quality document and drawing, and with just a simple technique you can create document that look professional and are exactly suited to your present task. Fine. Now the next is reliability. अभी देखो क्वालिटी की बात की, ठीक है, क्वालिटी की हमने बात की, एंड
Next point that we have to discuss is reliability. Now computer are reliable and accurate. What happened? Computers are what? Computers are reliable and they are accurate. The electronic component in modern computers are reliable because they have a low failure rate. देखो, रिलायबल मतलब क्या? भरोसा. कंप्यूटर के जो रिजल्ट होते हैं उस पर आप क्या कर सकते हो? यू कैन ट्रस्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो भी रिजल्ट होते हैं उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे कि सपोज इफ आई विल ओपन अ कैलकुलेटर हियर, अगर मैं यहाँ पे कैल्क यूज करती हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ, सपोज मैं 8987 और मान लो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 654 से. सी दिस इज अ बिट ऑफ अ बिग कैलकुलेशन, बट सी द मोमेंट आई प्रेस इक्वल्स टू साइन आई एम गेटिंग द रिजल्ट हियर. जिस मोमेंट आई एम प्रेसिंग द इक्वल टू साइन आई विल गेट माई रिजल्ट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. अच्छा, one more thing, now this result is accurate, we trust this result. now अभी क्या हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे दे आर नॉट दैट मच रिलायबल. वो कंप्यूटर्स क्या होते थे? उतने रिलायबल नहीं होते थे. हम उन कंप्यूटर्स पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते थे. बट व्हाट हैपेंड? हम उन कंप्यूटर्स पे क्या नहीं करते थे? उतना ट्रस्ट नहीं करते थे. But later on what happened? Later on what happened? That later on जैसे जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम आगे बढ़े, हमें पता चला कि अभी के जो मॉडर्न डे कंप्यूटर होते हैं दे आर व्हाट? दे आर रिलायबल. दीज कंप्यूटर्स आर व्हाट? दीज कंप्यूटर्स आर रिलायबल. दे गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट. ठीक है. Now, the electronic component in modern computers are reliable. Why they are reliable? Because they have a low failure rate. Because they have a very low failure rate. The high reliability of the component enables the computer to produce consistent results. The high reliability of the computer enables the computer to produce a what? A consistent result. A computer never makes mistake by itself. Computer never make mistake by itself. कंप्यूटर, हाँ देखो ये भी पॉइंट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर कभी भी खुद से कोई गलती नहीं करता है. नाउ सपोज अगर मैं कैलकुलेटर की ही बात करूँ, नाउ सपोज अगर मुझे 289 लिखना था, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 289 मैंने 286 लिख दिया. अभी देखो ये ह्यूमन एरर है. अभी ये क्या है? दिस इज ह्यूमन एरर. अब यहाँ पे अगर मेरा आंसर डिफर कर रहा है तो इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ मी. ठीक है, कंप्यूटर की गलती नहीं है, ये ह्यूमन एरर है. तो रिलायबिलिटी की अगर बात करें, सो कंप्यूटर आर व्हाट? दे आर वेरी रिलायबल एंड एक्यूरेट. The electronic component in modern computers are reliable because they have a very low failure rate. The high reliability of the component enables the computer to produce consistent result. It provides the computer to produce the consistent result. A computer never make mistake itself. अभी हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक खुद से नहीं करता है. It is true that sometime the equipment failed. हाँ, this is true. कि अभी देखो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, हो सकता है कि अचानक से ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए. ठीक है, तो it is true that sometime equipment fail, but most of the errors supposedly made by the computers are actually human error. ठीक है, अभी हमने इससे बात की कि देखो हो सकता है कि कभी इक्विपमेंट फेल हो जाए, बट व्हाट हैपन कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्यूटर एरर्स होती हैं दैट आर मेड बाय द ह्यूमन ओनली. ठीक है, उसमें कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं होती. ऑफन कॉज्ड बाय समवन हिटिंग अ रॉन्ग की व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन द कंप्यूटर. व्हाट इफ मतलब सपोज इफ आई हैव टू एंटर द डेटा ऑफ द होल स्कूल और सभी बच्चों का डेटा एंट्री मेरे को करना है एंड वहां पे मैंने कोई गलत इफ आई प्रेस एनी रॉन्ग की, तो वहां पे जो गलती हुई वो कंप्यूटर की गलती नहीं थी. दैट इज नॉट कंप्यूटर्स मिस्टेक. वो क्या है? वो ह्यूमन मिस्टेक है, वो मेरे से हुई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेबिलिटी. नेक्स्ट इज व्हाट? स्टोरेज कैपेबिलिटी.
जो अगला पॉइंट हमने पढ़ना है वो है स्टोरेज कैपेबिलिटी. सो कंप्यूटर कैन स्टोर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा. Computer can store enormous amount of data and make this data available for the processing at any point of time. Any point of time. अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है. कंप्यूटर कैन स्टोर यूज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर क्या करता है, यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है. अ कंप्यूटर कैन ट्रांसफर डेटा क्विकली from storage to memory, process it and then store it again for the future use. ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन स्टोर द इनॉर्मस अमाउंट एंड मेक दिस data available for processing at any point of time when it is needed. This storage capability has special importance in the today's information age. A computer can transform data quickly from storage to memory. अच्छा देखो, अब देखो सपोज दिस इज माई, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर का क्या है, वेट जस्ट अ मिनट. अगर मैं डेस्कटॉप करूँ तो यू कैन सी, अगर मैं दिस पीसी करूँ तो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग है. यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, ये मेरे कंप्यूटर की क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग मी द स्टोरेज ऑफ माई कंप्यूटर. आप देख सकते हो अलग अलग फोल्डर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आई हैव स्टोर्ड हियर. ठीक है, सो कंप्यूटर कैन स्टोर enormous amount of data. Computer what it can do, it stores the enormous amount of data and makes this data available for the processing. Make this data available for the processing at any point of time when it is needed. Now, a computer can transform data quickly from the storage to memory, process it and then store it again for the future use. अभी देखो आज क्या डिस्कस किया, स्पीड. वी हैव डिस्कस दैट कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, वेरी हाई स्पीड. नेक्स्ट इज क्वालिटी. कंप्यूटर क्या देता है हमें, क्वालिटी कंटेंट देता है. ठीक है, कंप्यूटर का जो कंटेंट होता है वो कैसे होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है. नेक्स्ट रिलायबिलिटी. ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, रिलायबल होता है. हमारे लिए कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है. नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक. रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट दे रहा है उस पर हम क्या करते हैं, वी रिलाई ऑन दैट रिजल्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वर्सैटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सैटिलिटी. द कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब एफिशिएंटली. नाउ कंप्यूटर क्या कर सकता है, जॉब को रिपीट कर सकता है एफिशिएंटली को. इट कैन वर्क द एरिया वेयर द ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मैनेज, फॉर एग्जाम्पल नोटिसिंग द मोशन ऑफ वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. अभी देखो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कुछ ऐसे एरियाज में काम कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन वहां तक नहीं सोच सकता. लाइक दे कैन ऑल्सो बी डिफरेंट, they can also work with different type of data and information. कौन से, like graphics, audio visual characteristics etc. तो कंप्यूटर क्या, it is very it can perform repetitive job. ठीक है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म what, कंप्यूटर कैन परफॉर्म द रिपीटेटिव जॉब. रिपीटेटिव जॉब को कंप्यूटर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. Okay now, ठीक है, they can also work with a different type of data and information like graphics, audio visual character etc. Fine, अभी इतनी चीजें समझ में आ गई. तो फिर से देखो, versatility means what, कि that computer can perform the repetitive task. कंप्यूटर क्या कर सकता है, repetitive task को perform कर सकता है. ठीक है, it can work in the area where the human brain cannot manage. जहाँ पे human brain manage नहीं करता, ये वहाँ पे उन एरियाज में भी कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है. ठीक है, they can work with a different type of data and information like graphics, audio video, visual characteristic etc. इन सभी जगह पे कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है. इतना भी सभी को समझ में आ गया, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. फाइन क्लास, so the rest of the thing, the rest of the characteristic and then what you can do with computer, all these things we can do, we will do in our next class. Fine, all these things we will do in our next class. So till then take a very good care of yourself. Fine, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की तरफ नहीं बढ़े हैं, that we will do later. Fine, so this is it for today and ma'am will meet you in the next class.